नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। महेश कुमार गौड़ का कांग्रेस विधायकों को चेतावनी, स्थानीय निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन पर विधानसभा टिकट से होगा वंचित। हैदरा ने मादापुर में अवैध खेल एकेडमी को ध्वस्त किया। तेलंगाना सचिवालय के पास सरपंचों का विरोध, लंबित बिलों की मांग पर स्थिति तनावपूर्ण। मनीष सिसोदिया का आरोप, केजरीवाल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। कुमारी शैलजा का बीजेपी के ऑफर पर स्पष्ट जवाब, मेरी रगों में कांग्रेस का है खून। अब खबरें विस्तार से। टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस विधायकों को स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वह आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उन्हें विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिल पाएगा। उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि वह जन योजनाओं को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाएं। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं की शिकायत है कि अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हाल ही में बीआरएस में शामिल हुए नेताओं को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। हैदरा ने सोमवार को मादापुर क्षेत्र के काबूरी हिल्स पार्क में एक अनधिकृत खेल एकेडमी को संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई काबूरी हिल्स एसोसिएशन की शिकायत पर की गई है। हैदरा के अधिकारियों ने बताया कि मादापुर सूचना टेक्नोलॉजी क्लस्टर का हिस्सा है, जहां अवैध निर्माण के लिए कोई जगह नहीं है। ध्वस्तीकरण के बाद पार्क में काबूरी हिल्स का बोर्ड भी लगाया गया है। स्पोर्ट एकेडमी के प्रबंधन ने दावा किया है कि उन्हें इस परिसर की 25 साल के लिए लीज पर मिली थी। तेलंगाना सचिवालय के पास उस समय महत्वपूर्ण माहौल बना जब सरपंचों के जेएसी ने लंबित बिलों की जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके जवाब में जेएसी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई, जिससे सचिवालय के आसपास की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। सरपंचల పెండింగ్ బిల్లులను గ్రామ పంచాయతీలో అభివృద్ధి పనులు చేసిన సర్పంచ్ల పెండింగ్ బిల్లులను గ్రామ పంచాయతీలో అభివృద్ధి పనులు చేసిన సర్పంచ్ల పెండింగ్ బిల్లులను ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం వాళ్ళు ఇక్కడ ఇదేమి రాజ్యం జస్టిస్ 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 సర్పంచుల పదవి కాలం అయిపోయి దాదాపు 8 నెలలు గడుస్తుంది। అదే విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 9 నెలలు అవుతున్నది అధికారంలోకి వచ్చి। కనీసం మా సర్పంచుల పెండింగ్ బిల్లుల మీద మేము ముఖ్యమంత్రికి 2 సార్లు వినతి పత్రాలు ఇచ్చాం। అదే విధంగా డిప్యూటీ సీఎం కు 2 సార్లు ఇచ్చాం, పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ కి 5 సార్లు ఇచ్చాం। అదే విధంగా ఆల్ మినిస్టర్ అందరి మినిస్టర్లకు వినతి పత్రాలు ఇచ్చినాం, ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చినాం। అధికారులు పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ నుంచి ఎంపీడీ దాకా వినతి పత్రాలు అందజేసినాం। అదే విధంగా మేము మా పెండింగ్ బిల్లులు ఉన్నాయని రాష్ట్ర గవర్నర్ గారికి కూడా ఈ ప్రభుత్వం చెప్తే ఇంటలేదు, మా పెండింగ్ బిల్లులు ఇప్పించండి, మా సర్పంచులు అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు, చనిపోతున్నారు, మమ్మల్ని కాపాడమని మేము గవర్నర్ గారికి కూడా వినతి పత్రం అందజేసాం। గవర్నర్ గారు దాదాపు మీకు నెల రోజులలో క్లియర్ చేయిస్తా అని చెప్పిండు। ఇప్పటికి దాదాపు 2 నెలలు అవుతుంది।
అదే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం ప్రజాపాలన అనేది దాంట్లో మేము దాదాపు మాకు 8 నెలల నుంచి మా పెండింగ్ బిల్లులు ఇవ్వకుండా మమ్మల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు. మేము ఏదేమైనా ఒక గాంధీ మార్గంలో మేము గాంధీ చూపించిన సిద్ధాంతాలతోనే మేము నిరసనలు కానీ వారికి వినమించడం జరిగింది. ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ కూడా మేము సర్పంచులం ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేయలేదు. ఇప్పటికీ కొంతమంది సర్పంచులు సావుకు దగ్గరలో ఉన్నారు. అప్పుల బాధ, వేధింపులు, వడ్డీలు కట్టలేక సావుకు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్వం కాపాడాలని, లేని ఎడల ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక డెడ్ లైన్ పెడుతున్నాం. మేము ఇన్ని రోజులు చూసినాం, ఇక మా వల్ల కాదు. ఈ నెల 30 తారీఖు వరకు ఈ ప్రభుత్వం మా సర్పంచుల పెండింగ్ బిల్లుల మీద ఒక స్పష్టమైన వైఖరి ప్రకటించాలి. లేని ఎడల మేము ఆందోళన కార్యక్రమాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే, మేము అవసరమైతే ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయం కూడా ముట్టడిస్తేందుకు మేము సిద్ధమవుతాం. అదేవిధంగా అన్ని జిల్లాలో ప్రభుత్వాన్ని దిష్టిబొమ్మ కూడా దహనం చేస్తాం. అదేవిధంగా అధికారులని అనేక రకాలుగా మేము గ్రామాల్లో తిరగకుండా అడ్డుకుంటామని తెలియజేసేందుకు మాది 30 తారీఖు వరకు ఈ ప్రభుత్వం క్లియర్ గా సర్పంచుల పెండింగ్ బిల్ల మీద స్పష్టమైన వైఖరి ప్రకటించాలి. ఇవాళ వీడికి రావడం కారణం ఏంటంటే అమరవీరుల సూక్తి. हैदरा ने अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ अपना अभियान फिर से शुरू करते हुए रविवार को कोकटपल्ली नाला चिरुवु में 16 शीट को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई पुलिस की कड़ी सुरक्षा में की गई। अधिकारियों ने सभी अनधिकृत संरचनाओं को निशाना बनाया। पीड़ित निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी नोटिस के तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई लोग बेघर हो गए और रोते हुए नजर आए। एक युवक ने कहा कि इस कार्रवाई से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि उसने अपने घर बनाने पर लाखों रुपए खर्च किए थे और उसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। प्रभावित निवासियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें कुछ समय दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया था, लेकिन सरकार ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। వద్దు ఎవడు కూడా కొడతాడు. దీంట్లో వండుకుంటా, ఏ పోలీసు వాడు కొడతాడో కొట్టండి, దీంట్లో వండుకుంటా. నా సామాన్ పోయే వరకు నా కొడుకు ప్రతి కష్టం. నా సామాన్ పోయినాక గుల్ల కొట్టుకొని ఏమైనా చేసుకోండి. సామాన్లు పోతాయి, మా సామాన్లు పోయినాక. हिंदुत्व समूह श्री राम सेना के कर्नाटक अध्यक्ष गंगाधर कुलकर्णी ने रविवार को कहा है कि उनकी संगठन ने हिंदू त्योहारों के दौरान सुरक्षा के लिए हथियार ले जाने का निर्णय लिया है। बेंगलुरु में एक सम्मेलन के दौरान कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की सत्ता में आने के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ तत्वों ने गणपति विसर्जन में बाधा डाला है। उन्होंने कहा कि नांगमंगला में पथराव और पेट्रोल बम फेंके गए और इस घटनाओं के लिए कांग्रेस सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। कुलकर्णी ने गृह मंत्री जी परमेश्वर से इस्तीफा की मांग की और कहा कि राज्य सरकार इन तत्वों के साथ है, जबकि गृह मंत्री गैर जिम्मेदार है और इस पद पर बैठने के लायक नहीं है। उन्होंने नागमंगला के घटना को एकमात्र संयोग बताया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। जनता की अदालत कार्यक्रम में सिसोदिया ने बताया कि जेल में उनसे कहा गया कि केजरीवाल उन्हें
फंसाया है और यदि उनका नाम लेते हैं तो वो बच सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने की पेशकश की गई थी और धमकी दी गई थी कि यदि ऐसा वह नहीं करते हैं तो जेल में उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। सिसोदिया ने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप लोग लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रावण इतना ताकतवर नहीं कि ऐसा कर सके। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके सहयोगियों को आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी के बारे में जानकारी दी, जिसमें कहा कि 2002 में पत्रकार के रूप में खरीदी गई 5 लाख रुपए की संपत्ति उनसे छीन ली गई और उनके बैंक खाते में मौजूद 10 लाख रुपए भी जब्त कर लिए गए। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बेटे के फीस भरने के लिए भीख मांगनी पड़ी, जबकि ईडी ने उनके बैंक को फीस कर दिया था। गौरतलब है कि सिसोदिया लगभग 1.5 साल तक जेल में रहे हैं और पिछले महीने उन्हें जमानत मिली है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। क्या होगा, जेल में कब तक पड़े रहोगे? अपनी सोचो। मुझे आगे ज्ञान भिजवाते थे, राजनीति में तो देखो सब ऐसे ही होता है, कोई किसी की नहीं सोचता। आपको आना चाहिए, आपको जेल से बाहर आना है तो आपको सुननी चाहिए इनकी बात। मुझे बता दे, आपकी वाइफ बीमार है, आपका बेटा पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, सोचो अपने परिवार की सोचो, परेशान हो जाओगे। मेरे घर में, जो घर मैंने 2002 में जब मैं पत्रकार था 5 लाख रुपए में घर खरीदा था, उस घर को भी इन्होंने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी के 10 लाख रुपए पड़े थे, वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। पहले डराते थे, समझाते थे, बहलाते फुसलाते थे, मेरा घर छीन लिया जो मैंने 5 लाख रुपए में 2002 में खरीदा था, बोले इसको भी जब्त कर लेते हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, वो भी जब्त कर लिए। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी है, मेरा बैंक अकाउंट ईडी ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह से टॉर्चर करते थे, इस तरह से मेंटली हैरेस करते थे। क्यों? इनकी कोशिश थी कि यह आदमी टूट जाए। लेकिन हम भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी की टीम के ग्रुप में खड़े हुए हैं। टूटे नहीं, घबराए नहीं, अंदर से टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अंदर से नहीं टूटा तो इन्होंने बाहर से तोड़ने की कोशिश की, चारों तरफ से। कभी कहते थे, सर आपको पता नहीं है मनीष जी, आपको तो अरविंद केजरीवाल जी ने फंसा दिया है। मुझे आके कहते थे, मैसेज देते थे। मैंने कहा भाई मेरे को तो अरविंद केजरीवाल जी ने 26 साल पहले फंसा दिया था, इस काम में उसी में लगा हुआ हूं मैं तो। कभी आके आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोगों ने बताया था, बेशर्मी देखिए इनकी कि सीबीआई में अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में एक बयान डाला, जबरदस्ती वहां कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, सारा इल्जाम मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो अब तो केजरीवाल जी ने आपका नाम ले दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो, आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था, हंसता था और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा, और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का। मैंने बार बार उनको कहा और आज इस मंच से जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा कर उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है, अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी वाइफ को यह बात बोली कि इस तरह के मैसेज आते हैं, मैंने उसको नॉर्मली बातचीत में कहा था कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूं ऐसे आदमी का साथ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन कार्यकर्ताओं को, क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को, शीशे में देखूंगा कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं कहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अपने आप को तो बाद में छोड़ो,
अगर ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो। अगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बारे में ऐसा सोचोगे, उनके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचोगे तो। इनको भी पता था कि 26 साल की ये दोस्ती इनसे टूट नहीं सकती। इन्होंने मुझको और केजरीवाल सर को 18 महीने अलग रखा। मैं कहता हूं फिर से, 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल जी 18 महीने तो क्या, 18 दिन भी अलग, 18 घंटे भी अलग नहीं रहे कभी 26 साल में। रोज मिलते थे, रोज देश के बारे में बात करते थे, रोज देश के बारे में काम करते थे, जहां लड़ते थे इकट्ठा लड़ते थे। लेकिन दुष्टों ने 18 महीने मुझको और सर को अलग रखा। 18 महीने बाद मिले अभी 13 सितंबर को, तो दिल बड़ा आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल के घर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी, वो किसी ने फोटो खींची थी। मैं बाद में सोशल मीडिया पे मुझको किसी ने भेजी हुई फोटो में देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पे आप जान सकते हो कि हमारे और इनके बीच में क्या रिश्ता है, इस दोस्ती के बीच में क्या रिश्ता है। इसको तोड़ने चले थे बीजेपी वाले। मैं देख रहा था उस फोटो को और मैं सोच रहा था कि वैसे तो रामचरितमानस में, रामायण में, इस घटनाक्रम में कभी राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए, लेकिन अगर कभी राम और लक्ष्मण अलग होकर वापस मिलते तो ऐसे ही मिलते जैसे मैं और केजरीवाल जी जिस भाव से मिले थे। उनकी तस्वीर भी ऐसे ही आती अगर वो मिलते उस तरह से, राम लक्ष्मण भी अलग होकर मिलते। हम दोनों 18 महीने के बाद मिले थे। 13 सितंबर को सर जब वापस आए, शाम को सब हम लोग बैठे, सारे मंत्री, विधायक, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। जब सब जाने लगे तो सर ने कहा 5 मिनट बैठो मेरे साथ। मैं और सर फिर बैठे थोड़ी देर घर में। जाने से पहले रात को बहुत कुछ बातें थी 18 महीने की कहने सुनने की। बहुत कुछ मेरे दिल में था, बहुत कुछ सर के दिल में था कहने के लिए। हमने बातें की, हमने चर्चा की कि किस तरह से 26 साल पहले परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, किस तरह से हम, दिल्ली विद्युत बोर्ड उस समय हुआ करता था, दलाल साहब जानते हैं, दिल्ली विद्युत बोर्ड हुआ करता था। दिल्ली विद्युत बोर्ड के दफ्तर के सामने मैं और अरविंद केजरीवाल जी जाके एक टेबल चेयर लगाते थे और वहां आने वाले लोगों को कहते थे इस दफ्तर में रिश्वत मत देना, हमने कानून पढ़ रखा है, अगर कोई इस दफ्तर का अधिकारी आपसे रिश्वत मांगेगा तो हम आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, रिश्वत मत देना। हम बैठ के दिन में 50-60 लोगों की एप्लीकेशन लिखवाते थे और वो लोग ऊपर जाके अपना काम करवाते थे। उस एप्लीकेशन की वजह से उनका काम ईमानदारी से होता था, क्योंकि सिटीजन चार्टर के हिसाब से हम एप्लीकेशन बनाते थे। हमने उस दिन बैठ के याद किया सर ने और हमने कि किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने पार्टी से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी के ऑफर पर प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। मनोहर लाल खट्टर के साथ बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव पर शैलजा ने कहा, आज जो बीजेपी नेता टिप्पणी कर रहे हैं उनसे मेरी राजनीतिक यात्रा ज्यादा लंबी है, मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें भी बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, बिल्कुल गलत है। शैलजा ने स्पष्ट किया, शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। उन्होंने अपने पिता का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वह कांग्रेस के तिरंगे में लिपटे थे वैसे ही वह भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपटेंगी। क्लेमेंट की बात नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी में हम सभी मिलकर 36 बिरादरी मिलकर काम कर रहे हैं। दलितों ने लोकसभा में भी दिखाया कि वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है और मुझे भी विश्वास। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा ने घोषणा की है कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो बदमाशों और नशा तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब इन तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनसभाओं में उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा, भाजपा सरकार के दौर में हर गांव, गली और मोहल्ले में नशा फैल गया है जिससे युवा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से युवाओं को नशे की लत लगाने की नीति पर काम कर रही है और इसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा में पंजाब से ज्यादा नशे से मौत होती है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी की सरकार भी काम देखे, पता खाली बीजेपी और जेजेपी का देखे। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा पड़ती रहती है
व्यवसाय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और भाई खेल खिलाड़ी में नंबर 1 हर पूरे देश में। और आज किस चीज में है नंबर 1? 10 साल के बाद आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में पंजाब से आगे नहीं हो गया। और बहुत उसमें आपने देखा नौकरी का मामला है, बच्चों को नौकरी नहीं दी उन्होंने, ठेके पे लगा रखा है। और कानून व्यवस्था बिल्कुल अपराधी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं। तो ये आपने पर्ची देखी तो हरियाणा बहुत पीछे चला गया और इस इलाके में पूरा खालिया गाँव खड़ा है और भी आसपास के गाँव के आदमी होंगे। मेरा एक आपसे सवाल है, भाई कोई इस 10 साल में कोई इस गाँव का काम हो तो बहुत बड़ा काम हुआ हो। कैमरा बंद है। आज मौका है कि आप छत्तीसगढ़ मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करो। अब सवाल इस बात का, आप जाओगे लोग पूछेंगे आपसे कि कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या करोगे? जब 5 साल बाद बता रहा हूँ, बाकी तो घोषणा पत्र आ जाएगा हमारा। कांग्रेस की सरकार बन गई तो भाई लोगों की पेंशन 6,000 करेंगे, 500 करेंगे और महिलाओं को 2-2 हजार देंगे। और जो आपकी उसकी बिजली की यूनिट है 300 यूनिट फ्री करेंगे। और नौकरी का जो नौकरी का इन्होंने क्या रखा है ना, लेकिन तो हमारे बच्चों को नौकरी दे रहे। नतीजा ये हुआ 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। ये तो नौकरी दिलवा रखी है, ना तो पेंशन है, ना रिजर्वेशन है, ना कुछ है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चों को नौकरी देंगे। हमने गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट दे रहे, 4 लाख प्लॉट अलॉट किए और 3 लाख अंकित कर दिए थे। ये सरकार ने बंद कर दी। हम आएंगे तो भाई कांग्रेस जो नीति थी फिर से प्लॉट देने की महात्मा ग्रामीण योजना जो है योजना शुरू करेंगे। अपने प्लॉट के साथ 100 गज के प्लॉट के साथ गरीब आदमी को 2 कमरे का मकान भी बना देंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, आपको बताएंगे। कानून व्यवस्था का सवाल है। देखो मैं एक बात कहते जा रहा हूँ, 2005 से भी पहले हालात खराब थे कानून व्यवस्था के, अपराध बहुत था। और 2005 में मौका मिला हमारे को मेरे को सेवा करने का मौका। आखिर में हेडलाइंस फिर। महेश कुमार गौड़ का कांग्रेस विधायकों को चेतावनी, स्थानीय निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन पर विधानसभा टिकट से होगा वंचित। हैदरा ने मादापुर में अवैध खेल एकेडमी को ध्वस्त किया। तेलंगाना सचिवालय के पास सरपंचों का विरोध, लंबित विलों की मांग पर स्थिति तनावपूर्ण। मनीष सिसोदिया का आरोप, केजरीवाल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। कुमारी शैलजा का बीजेपी के ऑफर पर स्पष्ट जवाब, मेरी रगों में कांग्रेस का है खून। 1 टीवी हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।